like to offer some prayers. Then we'll hear about the glories of Lord Shiva. Om Ajnanatirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So we'll just begin by one verse from Srimad Bhagavatam. Most of you might be knowing. Still, I'll just present it for all of you. So Srimad Bhagavatam 12th Canto, Chapter 13, text number 16. Nimnaganam yatha Ganga Devanam achyuto yatha Vaishnavanam yatha Shambhu Purananam idam tatha. Nimnaganam yatha Ganga Devanam achyuto yatha Vaishnavanam yatha Shambhu
पुराणानामिदं तथा निम्नगानां यथा गंगा देवानामच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभु पुराणानामिदं तथा. This is a famous verse. Many of you must have heard. असाधु साधुता दाई नाति नीचोत तारक हान मुंच कदाचिन्मा प्रेमणा हृत कंठयोस्फुरः. So first of all, I'm really feeling very much blessed to be amongst all this senior Vaishnavas of Sham Desh. सर्वप्रथम मैं अपने आप को बहुत कृतज्ञ मान रहा हूँ यहाँ पर कई वरिष्ठ वैष्णव के बीच में उपस्थित होकर. Although most of you are much more senior than me in age also and also in Vaishnavism, but it's your greatness that you have given me the opportunity to purify myself. उम्र में और वैष्णवता में आप सभी मुझसे वरिष्ठ हैं, परंतु ये आपके बड़प्पन है कि आपने यहाँ पर मुझे अवसर दिया है कुछ सेवा का, ताकि मैं स्वयं को पवित्र कर सकूं, स्वयं की वाणी को पवित्र कर सकूं. To purify my existence and also to purify my words. So actually I'm not in Amravati now, as our Radha Bhagavad was mentioning. Presently I am in Sri Vrindavan Dham. Hari Hari. Sri Vrindavan Dham ki. So here is a huge Maha Vaishnava Kumbh is going on. तो जिस प्रकार से प्रभु जी ने प्रारंभ में कहा, आपकी जानकारी के लिए मैं महाराष्ट्र अमरावती में नहीं, मैं श्री वृंदावन धाम में हूँ, जहाँ पर बहुत ही भव्य वैष्णव कुंभ आयोजित किया गया है. And as per our Vaishnava calendar, at least here in India, today is the Shivratri. In Braj, in Vrindavan, Shivratri was yesterday. तो हमारे गौड़ीय वैष्णव कैलेंडर के अनुसार आज शिवरात्रि उत्सव मनाया जा रहा है, और यहाँ पे वृंदावन में तिथि के अनुसार कल शिवरात्रि थी. Yesterday the same time, at this time I was at Mansarovar. कल ठीक इसी समय में मानसरोवर पर था. That's the exact place where as we hear, Lord Shiva had the strong desire to enter in the Ras Leela of Radha and Krishna. यह मानसरोवर ठीक वही स्थान है जहाँ पर शिव जी अपने हृदय में प्रबल इच्छा जागृत किए थे कि वहाँ राधा कृष्ण की रास लीला में प्रवेश करना चाहते हैं. And at that time we hear that Lord Shiva offered so many prayers. उस समय शिव जी ने कई प्रार्थनाएं की, and among them most specifically the prayer is prayers at the lotus feet of श्रीमती राधा रानी. और उन सभी प्रार्थनाओं से प्रमुख श्रीमती राधा रानी के चरणों में उन्होंने प्रार्थना की, and that is called as the Radha Kripa Kataksh, जो राधा कृपा कटाक्ष के नाम से जाना जाता है. मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेंद्र भानुनंदिनी व्रजेंद्र सुनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्. कदा करिष्यसि मां
Kripa Kataksha Bhajanam. So this is a very specific prayer which is offered by Lord Shiva to Srimati Radharani. And as the pastime goes, that after lots of prayers, finally it's mentioned that Srimati Radharani became pleased, and then Srimati Radharani asked Lalita to kindly guide Lord Shiva, and it's mentioned that Lord Shiva then Lalita Sakhi directed Shiva to kindly enter in the Mansarovar, because Shivji was having his male form, divine transcendental male form, but that male form is not, one is not allowed in the Ras Leela with that male form. So with the proper direction of Lalita Sakhi, it's mentioned that finally Shiva entered in the Mansarovar, he took bath, and as soon as he came out, he became the Gopi. And then it's mentioned that Tulsi Ma, Vrinda Devi personally came there, and Vrinda Devi gave the specific like dress, and she did the decoration of Shiva. It became the Gopishwar Mahadev. Shri Gopishwar Mahadev ki जय जय. तो क्षमा कीजिए, मैं अंग्रेजी में कह रहा था. जिस प्रकार से शिव जी ने कई प्रार्थना की और प्रार्थना का फल स्वरूप अंततः श्रीमती राधारानी ललिता सखी को आदेश दिया था कि कृपया आप जाकर शिव जी को तैयार करें इस रास लीला में प्रवेश करवाने के लिए, क्योंकि पुरुष भाव और पुरुष शरीर के साथ श्री कृष्ण के रास में प्रवेश नहीं किया जा सकता, रास में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है. तब ललिता सखी कहने पर शिव जी मानसरोवर में प्रवेश किए, और उस मानसरोवर जो श्रीमती राधा रानी के अश्रुओं से बनाए गए, ऐसा बतलाया जाता है. श्रीमती राधा रानी कृष्ण की लीला में श्रीमती राधा रानी एक बार मान करके बैठ जाती है. Anantashri Prabhuji, sorry, Pardon? there is a slight echo coming. I don't know what, Yes. some tone, which is just coming when you speak. ऐसी कोई घंटी की ऐसा ring resonating sound is coming. I don't know. Okay. Yeah. Is it okay now? Yeah, now it's okay. Yeah, now it's okay. Yeah. Hare Krishna, Hare Krishna. Yeah, I think the background some Tanpura was there. So Okay. Turn on that. Okay. Yeah, okay. Sorry for the interruption. Please go. So this monster is nothing but is the transformation of the skund, which is made up from the tears of Srimati Radharani. Srimati Radharani के अश्रु से बना हुआ कुंड है. तो वहां पर शिव जी प्रवेश किए, और जैसे प्रवेश किए उन्हें गोपी स्वरूप प्राप्त हुआ, और गोपी स्वरूप प्राप्त होने के बाद अंततः वहां पर बताया था कि वृंदा देवी या वृंदा सखी जिन्हें कहा जाता है, वृंदा सखी ने स्वयं वस्त्र लेकर आए. आप में से किसी ने शायद वहां पेंटिंग देखी जिसमें शिव जी को ऐसा ड्रेस दिया जा रहा है. There's also a painting famous where a dress is offered to Shivji of the gopi dress. तो वो जो वस्त्र है वो वृंदा देवी ने दिया, पूरा श्रृंगार करके तैयार किया, तब अंततः शिव जी को प्रवेश मिला था. So yesterday I was there, and today also there is in Vrindavan there's a Gopeshwar Mahadev. Yesterday we were in Mathura, where there is Mahadev. If you go to Kamban, there is Kameshwar Mahadev. So practically so many places Shivji is worshipped as Kameshwar, Bhuteshwar, Bhuvneshwar, Someshwar. So one of the common word if you see is the Ishwar. He is the Ishwar. So I was just hearing from one of the very senior devotees mentioning Ishwara, yeah, ideally it's meant like one controls. So it is a whole pastime how like once Brahmaji approached goddess Parvati. तो कल हमने कुछ दर्शन किए थे, गोपेश्वर महादेव है, फिर यहाँ पर मथुरा में भूतेश्वर महादेव है, लगभग 4 दिन पहले गोवर्धन में थे जहाँ चकलेश्वर महादेव है, परसों नंदग्राम में थे नंदीश्वर महादेव है. ऐसे तो अगर आप जगन्नाथपुरी के समीप जाते वहां पे भुवनेश्वर महादेव है, अगर द्वारका के समीप जाते तो वहां पर सोमेश्वर है, सोमनाथ महादेव.
तो लगभग सभी जगह पर ये शिव जी जिस तरह से पूजे जाते हैं, उनके हर नाम में एक समान शब्द है कि ईश्वर। तो मैं किसी वक्त से श्रवण कर रहा था, तो उन्होंने बहुत सुंदर उसका अर्थ बतलाया कि ईश्वर, ईश्वर मतलब जो इस जगत को पूरा नियंत्रण करते हैं। परंतु उसका एक अन्य अर्थ भी है, वो बताया कि एक समय में ब्रह्मा जी पार्वती से मिलने गए। Once upon a time, Lord Brahma went to meet Parvati, and this whole description of the story, pastime, is mentioned in one of the bhajan. So there they mention that Brahma says, "I am the person who is making the whole creation, and then I am making the vidhi vidhan, like what are the different karmic reactions the persons will get, and accordingly what are the different kinds of species, births one will attain. The whole calculation is done by Brahma." ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं वास्तविक सृष्टि करता हूँ और मैं विधि विधान का रचयिता हूँ, मतलब हर एक के कर्म के अनुसार से कौन कौन सी शरीर, कौन सी योनि प्राप्त होने वाली, यह पूरा मैं कैलकुलेट करके उसका पूरा अकाउंट तैयार करता हूँ। और वहां पर फिर ब्रह्मा जी कहते हैं पार्वती से कि मैं जितना कुछ कार्य कर रहा हूँ, ये कार्य को बिगाड़ने वाला कोई व्यक्ति तो बोले शिव जी है। Whatever chart I'm making of each and every living entity, that whole thing gets completely spoiled only because of the presence of Shiva. Why? Because Shivji is said to be one of the person who is like completely intoxicated. शिवजी के विषय में कहा जाए, शिवजी ऐसे जो हमेशा मत रहते, मत मतलब एकदम नशे में, जैसे कोई व्यक्ति धुत रहता है, तो वैसे शिवजी हमेशा नशे में रहते हैं। और किस चीज का नशा? तो कहते हैं कि शिवजी इज ऑलवेज इंटॉक्सिकेटेड इन द चैंटिंग ऑफ द राम नाम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वराना। Lord Shiva is constantly chanting the names of Lord Ram, 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 Ram. And it's mentioned in one of the Puranas that as soon as Shiva chants the name, he goes into samadhi. As soon as chants the name of Lord Ramchandra, he goes into samadhi. And just by chanting one name of Ram, Shiva goes for samadhi for 88,000 years. शिव जी जो है सदैव राम नाम में डूबे रहते हैं, और राम नाम में डूबे रहते हैं। इतना अधिक राम नाम में उनका प्रेम है कि बतलाया जाता है आचार्य के द्वारा कि एक राम शब्द का केवल उच्चारण करने मात्र से शिव जी को 88,000 वर्ष की समाधि लग जाती है। इस तरह से वो नाम में डूबे रहते हैं। तो ब्रह्मा जी ये बता रहे थे कि चूंकि वो हमेशा नशे में, और कोई व्यक्ति नशे में रहता है तो उसके पास कोई भी जाकर कुछ भी मांग ले तो वो होश में ना रहने के कारण कुछ भी दे देता है बिना सोचे समझे। As like someone is intoxicated, if any ordinary person will approach an intoxicated man, naturally he will give what is asked. So that's the problem. Like Shivji, anyone comes and anyone asks for any kind of benediction without thinking about his past record, his past karmas, Shivji immediately gives the benediction. It's mentioned. As soon as someone comes, immediately Shivji makes them the devotee of Lord Krishna, Lord Ramchandra. जैसे कोई जीव आता है निस्वार्थ भावना से, शिवजी तुरंत उन्हें कृष्ण या राम की भक्ति प्रदान करते हैं। And in this way, he completely destroy the past karmic reaction of all the living entities. और इस तरह से जितने भी पूर्व कर्म के जो प्रारब्ध थे वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी वहां पर पार्वती से कहते हैं। So especially for us, this day is very auspicious, as Srila Prabhupada also mentions in the Krishna book, the chapter 34th of Krishna, the Supreme Personality of Godhead, where there is a description of how the Vidyadhara got liberated and how also the Shankachud demon was killed. तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस ग्रंथ में श्रील प्रभुपाद जी कुछ इस विषय पर बतलाते हैं, विशेष से अध्याय 34 जहां पर विद्याधर का उद्धार और शंखचूड़ का वध संहारी, इसका वर्णन किया गया है। So I just read from Krishna book, the 34th chapter. Yeah, you can hear.
Once upon a time, the cowherd men of Vrindavan, headed by Nand Maharaj, decided to go to Ambika Van to observe the Shivratri ceremony. एक समय वृंदावन के सभी गोप नंद महाराज के नेतृत्व में अंबिका वन में गए शिवरात्रि का व्रत करने के लिए. The Ras Leela was performed during the autumn, and after that, the next big ceremony is Holi or the Dol Yatra ceremony. Between the Dol Yatra ceremony and the Ras Leela ceremony, there is an important ceremony called Shivratri. तो यहाँ डोल यात्रा और रास लीला ये दो जो उत्सव होते हैं उसके बीच में एक विशेष उत्सव या व्रत आता है जिसे शिवरात्रि कहा जाता है, which is specially observed by the Shaivites or devotees of Lord Shiva, जो विशेष रूप से शिव जी के भक्तों के द्वारा मनाया जाता है. But now listen very carefully. Srila Prabhupada says, sometimes the Vaishnavas also observe this ceremony. कई बार वैष्णवगण भी इस शिवरात्रि के व्रत का पालन करते हैं, because they accept Lord Shiva as the foremost Vaishnava, क्योंकि वह शिव जी को परम वैष्णव के रूप में स्वीकार करते हैं. जिस तरह से अभी हमने जो श्लोक कहा, just now the beginning we have recited the verse from Srimad Bhagavatam which speaks about Nimnaganam yatha Ganga, amongst the rivers. Nimna ga means flows, Nimna means downwards. Nimnaganam yatha Ganga, amongst all the rivers, the greatest river is the Mother Ganges. Devanam achyuto yatha, amongst all the devas, Lord Achyuta, Lord Krishna is the topmost. Purananam idam tatha, amongst all the Puranas, Srimad Bhagavatam is the topmost. And similarly, Vaishnavanam yatha Shambhu, amongst all the Vaishnavas, Shivji is the topmost. जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत का यह श्लोक प्रारंभ में हमने श्रवण किया, जहां पर वर्णन किया गया है कि समस्त नदियों में जो नीचे का प्रवाहित होने वाली जो जल की धाराएं होती है नदी कहा जाता है, उन नदियों में सबसे श्रेष्ठ गंगा को कहा जाता है. देवों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण अच्युत को कहा जाता है. पुराणों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत को कहा जाता है. उसी प्रकार से समस्त वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ शिव जी को कहा जाता है. तो इसीलिए यहाँ शिवरात्रि, चूंकि शिव जी सबसे महान वैष्णव है, जिस प्रकार से हम अन्य वैष्णवों के आचार्यों के, विशेष रूप से वे आचार्य जो हमें कृष्ण भक्ति की शिक्षा को प्रदान करते हैं, उनके आविर्भाव तिरोभाव अन्य पर्वों को मनाते हैं, उसी प्रकार से शिव जी चूंकि महान वैष्णव है, इसलिए वैष्णवगण भी शिवरात्रि के व्रत को मनाते हैं. As we observe the appearance, disappearance and different festivals related to different Vaishnavas, acharyas who teach us about the devotional service. Similarly, since Lord Shiva is the greatest Vaishnava, to take his blessings also we observe this Shivratri. Is another description of the conversation between Parvati and Shiva, where Parvati asked Shivji that which day is the dearmost day you have, and there Shivji speaks about Shivratri, the glories of Shivratri. It's the dearmost day I have. एक पुराणों में यह भी वर्णन किया है कि किस तरह से शिवजी और पार्वती के बीच में संवाद है, जहां पर just a minute, hold on. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Sorry for the interruption. I was just okay. तो शिवजी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि शिवरात्रि सबसे प्रिय उन्हें दिवस है, इसीलिए इस दिवस को बहुत विशेष रूप से मनाया जाता है. I was just thinking about different pastimes of Lord Shiva also. Shiva Tattva is there, the Shiva Mahima is also there, the glories of Lord Shiva. Most of the time there is a lot of debate always going on amongst the
the two classes of people in this world. One class who accepts Krishna, Vishnu as the supreme, another class who accepts Lord Shiva as the supreme. So who accept Lord Shiva as the supreme are Kaivites. Those who accept Krishna as the supreme are called Vaishnavas. तो सदैव देखा गया है इतिहास में भी कि दो प्रकार की श्रेणी के लोग होते हैं जिनमें सदैव विवाद चलते रहता है. एक जो श्री कृष्ण को परम मानते हैं वे वैष्णव कहलाते हैं, और अन्य जो शिव जी को परम मानते हैं वो शैव कहलाते हैं. और वैष्णव और शैव के बीच में सदैव द्वंद्व रहता है. इस तरह से देखा गया है. वो कहते कि कृष्ण श्रेष्ठ है, कोई कहता है शिव जी श्रेष्ठ है. So once it's mentioned like it was asked to Srila Prabhupada also, like who is the topmost? And then Srila Prabhupada mentions there that there's also a description of like Lord Chaitanya Mahaprabhu went to South India tour, and there the same kind of debate was going on, and Lord Chaitanya also speaks about those who are less intelligent, those who are not matured enough in their spirituality, they always go for such debates. श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में वर्णन किया गया है कि जब इस प्रकार का एक तर्क चल रहा था जहां पर शैव और वैष्णव में, तो वहां पर कहते हैं जो आध्यात्मिकता में परिपक्व नहीं होते हैं और जो बहुत अधिक प्रगत नहीं है वो इसी प्रकार का भेद करते हैं. परंतु वास्तविक श्रील प्रभुपाद इस बात को बतलाते हैं. श्रील प्रभुपाद से पूछा गया, when it was asked to Srila Prabhupada, and Srila Prabhupada mentioned that we are debating here, we have the competition, who is the topmost. In this world, we have the competition, who is the topmost. इस जगत में हमारे बीच में सदैव स्पर्धा चलती रहती, दोनों में से श्रेष्ठ कौन है. But amongst both of them, amongst Krishna and Shiva, they also have the competition. तो उसी प्रकार से श्री कृष्ण में और शिव जी में भी सदैव स्पर्धा चलती रहती है. Here we have the competition, who is the topmost. यहाँ पर हमारी स्पर्धा चलती है दोनों में श्रेष्ठ कौन है. But there between Krishna, Rama and Shiva, there is competition who can serve the best. परंतु कृष्ण में और शिव जी में यह स्पर्धा चलती कौन किसकी अच्छे श्रेष्ठ सेवा कर सकता है. They always have the competition. They always keep competing, always try to serve each other more and more. As we see that Shiva serves Krishna as a Kshetrapal also, like wherever Krishna descends on this planet, Krishna's abode, the Dham descends, whether it's Vrindavan, whether it's Badrinath, whether it's Dwarka, whether it's Jagannath Puri. So Lord Shiva also descends there as the protector of that Dham, which is called a Kshetrapal. जहां कहीं भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते भगवान का धाम प्रकट होता है, तो उस धाम का रक्षण करने के लिए, धाम का संरक्षण करने के लिए शिव जी प्रकट होते हैं, वहां पर अवतार लेते हैं क्षेत्रपाल के रूप में. लेकिन वृंदावन वी हैव द 4 prominent शिवजीज who protect this ब्रजमंडल. जिस प्रकार से वृंदावन में 4 प्रमुख रूप से शिव जी के स्वरूप है जो ब्रजमंडल का रक्षण करते हैं. So in Vrindavan we have Gopeshwar, Mathura Bhuteshwar. In Govardhan we have Chakleshwar, and then in Kamvan we have Kameshwar. In Nandgram we have Nandishwar, and outside the Nandgram we have Aseshwar. तो इस प्रकार से अलग अलग महादेव के वृंदावन में होता है. As Lord resides in Badrinath, so there also to serve Lord Narnarayan, again Shivji appears as Kedarnath Mahadev. When Krishna appears in Dwarka, then Shivji appears as Somnath. When Krishna appears in Jagannath Puri as Lord Jagannath, then Krishna protects that dham by appearing as the Bhuvaneshwar Mahadev. So in this way, Srila Prabhupada was mentioning that actually they also have the competition, but who wants to serve each other? So Shivji is the greatest devotee
of the Lord, who is always absorbed in the chanting of the holy name. Not only he, his whole family, they are always engaged in serving Krishna and Ram. And as we hear from Rama and from Bhagavatam, the topmost speaker of Bhagavatam is Shivji. It's mentioned that when Shiva recites the Bhagavatam, he gets fully absorbed. तो भगवान के नाम के जप में और साथ ही में श्रीमद् भागवतम और भगवान राम जी के कथा को कहने में सबसे श्रेष्ठ कोई प्रवक्ता यदि है तो कहा जाता है कि शिव जी है। शिव जी है जो बहुत सुंदर कथा करते हैं। As it's mentioned by Tulsiram, Vande Bodhamayam Nityam Guru Shankar Rupinam Yamashito hi Vakropi Chandra Sarvatra Vandade. As it begins the Ramayana, so there's mentioned that Vande Bodhamayam Nityam Guru Shankar Rupinam, that I offer my obeisances to Shankara, who is the first Adi Guru. Yam Ashrito hi Vakropi Chandropi Sarvatra Vandate. Although this Chandra is not complete, is half, but that Chandra also becomes worshipable when he comes in contact with Shiva. तो उन शिव जी को वंदना की जाती है जो सबसे श्रेष्ठ गुरु कहलाते हैं, जिनका आश्रय ने मात्र से चंद्रमा जो वैसे वक्र है, टेढ़ा है और आधा अंश में ही प्रकट हुआ है, परंतु वह जब चंद्र शिव जी के मस्तक पर विराजमान हो जाता है तो वह भी वंदनीय बन जाता है। तो इस प्रकार से वहां पर बतलाया जाता है कि यह शिव जी श्रीमद् भागवत को सदा कहते रहते हैं। So it's mentioned that in Amarnath, this is a whole pastime how in Amarnath is a place where Lord Shiva constantly recites Srimad Bhagavatam. तो अमरनाथ वह स्थान है जहां पर शिव जी सदैव भागवत की कथा कहते हैं और पार्वती सुनते हैं। So the whole pastime how once Narad Muni becomes the instrument to inspire Shivji to speak Bhagavatam. तो एक प्रसंग आता है किस तरह से नारद जी निमित्त बने शिव जी के द्वारा श्रीमद् भागवत को प्रकट करने के लिए। So mentioned that Narad Muni approached Parvati and Narad Muni said to Parvati that actually your husband doesn't really love you. एक बार नारद मुनि ने आकर पार्वती से कहा कि आप जानते हैं कि आपके जो पति है शिव जी, वे वास्तव आपको पूरी तरह से प्रेम नहीं करते। And then Parvati said, how you can say like this? आप ये कैसे कह सकते हो? So at that time Narad Muni said that if Shivji really loves you, he should tell you all the secrets. यदि शिवजी सही में आपको प्रेम करते तो वो आपके अपने सभी गोपनीय जो रहस्य है वो आपको बताने चाहिए। But he has kept one secret hidden from you. परंतु उन्होंने एक जो बात है वो रहस्य आपको भी बताया नहीं है। And then Parvati asked, what's that? पार्वती ने पूछा कि वो कौन सा है, और तब वहां पर नारद मुनि कहते हैं कि you must have seen that Shivji is always wearing a mundamala, garland of skulls. नारद मुनि ने कहा कि शिवजी आप देखा होगा सदैव मुंडमाला धारण करते हैं। तो then Narad Muni said, do you know this to whom this belongs to all the skulls? जब उस समय नारद ने पूछा कि जो आप देख रहे हैं कि मुंडमाला बन रही, मुंड किनके है क्या आप जानते हैं? तो पार्वती ने कहा नहीं। तब नारद मुनि ने कहा कि यही तो रहस्य है, कि बहुत गोपनीय रहस्य है जो आपको आज तक बताया नहीं शिवजी ने। And then Narad Muni said that that's the secret which Shivji has kept hidden from you. So as soon as Parvati heard this, Parvati became very suspicious. जैसे उन्होंने सुना तो वो काफी संशयास्पद हो गई और विचार करने लगी कि शिवजी ने क्यों नहीं बताया। So as soon as Shivji came out of the samadhi, opened the eyes, and then he saw that Narad Muni was just walking out. तो तुरंत जब शिवजी समाधि से बाहर आए तो देखा कि नारद मुनि वहां से जा रहे थे। पूछा पार्वती से नारद मुनि कब आए थे, क्या हुआ? तो शिवजी asked that when Narad came here and what he has said.
So immediately Parvati started asking that you say, always say that you love me very much, but you always kept some secret hidden from me. पार्वती ने कहा कि आप मुझे सर्वाधिक प्रेम करते सदैव कहते, परंतु आपने मुझसे कुछ बात छुपा कर रखी है. So at that time Shivji said, what's that? I never kept anything hidden from you. कौन सी बात है? So at that time Parvati said that you are wearing this garland of skulls, but you have never told me about the secret of this garland. आप ये मुंड माला पहनते, परंतु इस मुंड माला के पीछे का रहस्य आपने आज तक मुझे बताया नहीं. So Shivji understood that this is the trick of Narada, and he was trying to ignore that. Oh, no need to discuss all these things. But then Parvati insisted. Shivji टालने लगे, परंतु अंततः पार्वती ने बहुत आग्रह किया. So at that time we see that then Lord Shiva mentioned that actually you have taken so many births. तब शिवजी बताते कि हे पार्वती, तुमने कई जन्म लिए. And whenever you have taken birth, I accepted you as my अर्धांगिनी. When जब भी तुमने जन्म लिया, मैंने सदैव तुम्हें अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया है. And whenever you left body, I could not bear your separation. जब भी तुमने देह त्याग किया, तब मैं तुम्हारा विरह सहन नहीं कर पाया. So I just kept your skull and put it in my garland. तो मैंने तुम्हारे जो जितने शरीर त्याग किए, उन सभी के मुंड को अपने माला के रूप में गले में धारण किया. इस तरह से शिव जी का पार्वती के लिए प्रेम समझ में आता है. तुरंत उस समय पार्वती ने पूछा, at that time Parvati asked Lord Shiva that yeah, if I have taken so many births, but you have never changed your body. मैंने इतने जन्म लिए, परंतु आपने तो कभी शरीर बदला ही नहीं. What is that secret? उसका रहस्य क्या है? And at that time Shivji said that because I am constantly reciting Srimad Bhagavatam, that's the reason I never die. चूंकि मैं सदैव भागवतम को पढ़ते रहता हूँ, नित्यम भागवत सेवया, इसीलिए मेरी मृत्यु कभी नहीं होती. And that time Parvati asked that I really would like to hear what is that Bhagavatam. I also would like to become eternal. मैं भी इस तरह से अमर बनना चाहती हूँ. तो क्या है श्रीमद् भागवतम? So at that time we hear that then she will say, okay, I will narrate the Srimad Bhagavatam to you, but there's some condition. On that condition only I will speak the Bhagavatam. And the first condition is when I start speaking Bhagavatam, I get fully absorbed. I don't keep my eyes open. I go into samadhi while reciting Srimad Bhagavatam, while narrating the pastimes of Krishna and Rama. जब मैं श्रीमद् भागवतम की कृष्ण और राम की लीला कहूंगा, तो उसमें समाधि अवस्था में जाने पर मेरी आंखें खुली नहीं रहती, मैं पूरे तल्लीन हो जाता हूँ. But I also want to make sure that you are very attentively listening to all these pastimes. परंतु साथ ही मुझे यह भी ध्यान रखना है कि तुम ध्यान पूर्वक इन कथाओं का श्रवण कर रही हो कि नहीं, और तुम्हें छोड़कर और किसी ने इस कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए. And other than you, no one should hear this pastimes of Krishna and Rama. So how will I come to know? तो उन्होंने पूछा कि मैं कैसे पता चलेगा कि तुम ध्यान से सुन रही हो. तब पार्वती ने कहा कि आप जो भी कहेंगे, whatever you will say, तो उसको मैं हाँ ऐसे इन्हें हिंदी में कहते हैं हुंकार करना. So I will make this kind of sign, just to make sure that I'm listening to the katha. So at that time, then Shivji just went into samadhi, started speaking Srimad Bhagavatam on and on. And after in every pastime, then Parvati was like confirming his attendance by saying But what happened? It's mentioned that when some Bhagavatam speakers, they say that Parvati went to sleep. Like many devotees, they go to sleep while hearing Bhagavatam classes. So similarly, Parvati also must have gone to sleep. तो कभी-कभी कुछ भक्त जब इस कथा को बताते तो कहते कि जिस तरह से कई भक्त भागवतम क्लास में सो जाते सुनते-सुनते, तो पार्वती भी सो गई थी. But I heard from another devotee said that cannot happen. पार्वती कभी सो नहीं सकती. It's mentioned that as Shivji got absorbed in speaking and he went to samadhi. So at that time, when specifically when Shivji was narrating the Krishna Leela, Parvati also went to samadhi.
तो वहां पर बतलाया जाता है कि हालांकि पार्वती सोई नहीं थी, परंतु जब भागवतम में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन जब करने लगे शिव जी, उस समय कहा जाता है कि पार्वती भी समाधि में चली गई सुनते सुनते. So as soon as Parvati also went to samadhi, so she stopped saying this, and at that time it's mentioned, but still that sound was coming. परंतु फिर भी वो ध्वनि आ ही रही थी, and at last when Shivji opened the eyes, and what he saw that Parvati's eyes were also closed. तो अंत में जब शिवजी ने आंखें खोली, क्या देखा कि पार्वती की भी आंखें बंद थी, और वो कथा होने के बाद भी ये आवाज आ रही थी. Even after the completion of the katha, the sound was coming, but it was not coming from Parvati. परंतु वो ध्वनि जो है पार्वती से आई थी. तुरंत तब मन में विचार आया, sorry I forgot to mention, कि वहां अमरनाथ में जहाँ पे चारों तरफ बर्फ है, अमरनाथ like everywhere is completely cold, and in between it's mentioned that there is one vata vruksha, and below that vata vruksha Shivji was speaking this Bhagavatam. So अमरनाथ में वट वृक्ष के नीचे शिवजी भागवतम कह रहे थे. And before starting the Bhagavatam, उस भागवतम को शुरू करने के पूर्व Shivji wants to make sure that no one who is not qualified should not be present here when I speak Bhagavatam. जो अनाधिकारी व्यक्ति, जो योग्य व्यक्ति नहीं, वो यहाँ पर नहीं रहना चाहिए जब भागवतम कह रहा हूँ. So immediately at that time, Shivji had the damru, started like playing that damru. तो जैसे ही कथा प्रारंभ, कथा के पहले उन्होंने तुरंत डमरू बजाना शुरू किया. Just by the sound of damru, all the living creatures which were there on that in that area, they all left. All the birds, all different animals, whatever, all of them they left. जैसे ही शिवजी ने डमरू नाद किया, तो कहा जितने वहां पे प्राणी थे सबके सब चले गए थे. और फिर ये पूरी कथा हुई, and then the whole katha happened. So that time Shivji was wondering that if Parvati has closed the eyes and no other living entity is here present on this area, then who is the person who is making the sound? उस समय शिवजी कथा के अंत में विचार किया कि पार्वती आंखें बंद है और इस पूरे क्षेत्र में तो कोई भी नहीं है, तो आवाज कहां से आ रही, ध्वनि कहां से आ रही है. And at that time immediately Shiva saw on the top of the tree there was a parrot. और उस समय शिवजी की दृष्टि गई कि उस वृक्ष के ठीक ऊपर, सबसे ऊपर जो है, एक छोटा सा तोता था. So it's mentioned by some acharyas that like how who is this parrot? Actually this parrot is nothing but Krida Shukoshi Vrishabhanujaya. It's mentioned in Gautami Yamal Tantra. It's mentioned that who is this Shuka? This Shuka is none other than a specific parrot who is the personal associate of Srimati Radharani. And under the instruction of Radharani, he appeared on this planet. ये श्रीमती राधारानी का शुक है, जिसे कहा जाता है लीला शुक, और वो लीला शुक ही इस संसार में आए उस तोते के रूप में. And how it appeared is said that the parents of that parrot gave birth to an egg. एक अंडे को उन्होंने वहां पर जन्म दिया, और अंडे को जैसे जन्म दिया तो डमरू बज गया. डमरू बजा तो वो जो माता पिता थे उड़कर चले गए. When Shivji had made the sound of his drum or damru, immediately the parents left the place. But that egg was there. And what happened is mentioned that when Shivji was narrating the Krishna Leela, at that time Shivji started feeling the very intense separation of Krishna. जब शिवजी कृष्ण की लीला कह रहे थे तो उनके हृदय में विरह की भावना जागृत हो गई कृष्ण के लिए. And immediately Shivji's body started burning from the virah agni. उस समय कहा जाता है कि शिवजी का जो शरीर है एकदम गर्म होने लगा विरह अग्नि से. और and because of that flame, the heat which was coming from the body of Shiva, this egg become completely hot and it got broken. कि जो अंडा जो था ऊपर, वह इस गर्मी के ताप के कारण वो पक गया, और पकने के कारण वो टूट गया. Because the question can come that if the mother has left, how this egg got broken, specifically in that especially in that completely cold climate. ऐसे शीत प्रदेश में, बर्फीले प्रदेश में वो अंडा जीवित कैसे रहा और अंडा फूटा कैसे, प्रश्न ये था.
तो वहां पर आचार्य बताते कि शिव जी के हृदय में जो विरह है कृष्ण का, उसकी अग्नि इतनी थी कि वो अंडा फूट गया. बिकॉज ऑफ दैट हीट, दैट egg got broken, and at that time then that parrot came, was none other than Shuka of Srimati Radharani, and that Shuka heard the whole Krishna Leela Srimad Bhagavatam from the lotus mouth of Shivji. तो वह जो लीला श्रीमती राधारानी के स्तोत्र के रूप में आया था, उसने यह श्रीमद् भागवतम सुन लिया. So as soon as Shivji saw this, immediately Shivji took his trident and decided to kill this parrot. तो तुरंत उन्होंने अपने त्रिशूल को धारण किया और निश्चय किया कि इस तोते को मैं तुरंत मार दूंगा. और जैसे ही वो उठे तो तुरंत तोता जो उड़कर चला गया. As soon as Shivji got up, this parrot fled away from there. And finally it's mentioned that whole episode of how he entered in the mouth of the wife of Srila Vyasdev. तो वहां बताया था कि अंततः यही तोता जो है श्रील व्यासदेव की जो पत्नी है, उनके मुख से उनके घर में प्रवेश किया और वही बन गए सुखदेव गोस्वामी. श्री सुखदेव गोस्वामी की क्या है. So this is one of the pastime which just suddenly came to my mind, although it was not in the plan, of how Shivji is the first narrator of Srimad Bhagavatam, and by the mercy of Shivji, eventually Shukdev Goswami became the speaker of Srimad Bhagavatam. So this Shivji, like I was just discussing day before yesterday with also some devotees here, of how he is the person who basically who becomes the instrument to give the pure loving devotional service to all the living entities. Whoever has developed a love, whoever has developed a devotional sentiments for Krishna and for Rama, definitely somewhere they have got the blessings of Shiva. It's mentioned in another place that without the mercy of blessings of Shivji, no one can become a Vaishnava. That's the meaning of Vaishnavanam Yatha Shambhu. Because he is the greatest Vaishnava, his blessings are always required. And there are so many pastimes. We hear that how he has given this devotional service to many people. There's a special in India, भारत में से कई हम दृष्टांत सुनते हैं शिवजी की कृपा के कारण कैसे कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है. और शास्त्र में कई स्थान पर बताया, वैष्णवानाम यथा शंभु का एक अर्थ में सुन रहा था, यहाँ बताया था कि सबसे श्रेष्ठ वैष्णव शिवजी है. तो जब तक शिवजी की कृपा न प्राप्त हो तब तक वास्तविक कोई भी कृष्ण की भक्ति में, राम की भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता है. So I'll just mention some of them which I just suddenly came to my mind, and one of that is of Narsingh Mehta. और उसमें से एक प्रमुख कथा है जो नरसिंह मेहता. Narsingh Mehta was originally from Gujarat, and we hear that Narsingh Mehta from childhood he was not able to speak. Narsingh Mehta गुजरात से थे और बाल्यावस्था से गूंगे थे, बोल नहीं पाते थे. As soon as Narsingh Mehta took birth, his parents left the body. जैसे नरसिंह मेहता जन्म हुआ, उनके माता पिता ने शरीर छोड़ दिया. So Narsingh Mehta was having one grandmother. So Narsingh Mehta was living with the grandmother and elder brother. तो नरसिंह मेहता अपनी दादी और अपने बड़े भाई के साथ रहते थे. दादी ने देखा कि यह जो बालक है बहुत सुंदर बालक था, परंतु बालक को बोलना नहीं आता था. So grandmother saw that this child is very beautiful, but he cannot speak anything. So she tried all different ways, but she didn't got any success. उन्होंने बहुत प्रयास किया इस बालक से बुलवाने का, परंतु कोई यश नहीं मिला. तो अंततः वहां बताते कि अंततः उसकी दादी ने नरसिंह मेहता को शिवजी के मंदिर में लेकर गई. At last it's mentioned that his grandmother took Narsingh Mehta to a Shiva temple, and there she started crying in front of Shiva, it's mentioned, and started offering the prayers to Shivji. तो उस समय वो दादी वहां पर पहुंचे, वो रोने लगी और कई बार प्रार्थना करने लगी. तो प्रतिदिन आके वहां पे ऐसे प्रार्थना करती थी. Every day she used to come to Shivji and then she used to offer the prayers. Kindly bless this child, kindly bless this child, kindly bless this child. It's mentioned that after a few days, suddenly the grandmother, when she brought Narsingh to the Shiva temple, कई दिनों के बाद में एक दिन जब वो नरसिंह को शिवजी के मंदिर में लेकर आई, तो क्या देखा,
she saw that one very effulgent sadhu was like sitting in a padmasana in that Shiva temple. तो उन्होंने देखा कि बहुत ही तेजस्वी एक साधु था जो पद्मासन में वहां पर शिव जी के मंदिर में बैठा हुआ था. So as soon as the grandmother saw this, she was wondering that I never saw this person before. वो दादी उनका विचार कर रही थी आज से पहले कभी ऐसे एक तेजस्वी साधु को मैंने देखा नहीं. So she thought that let me go and take the blessings of the sadhu and also let me take my grandson and he also can get the blessings of the sadhu. तो तुरंत उन्होंने विचार किया कि मैं और मेरे नन्हा जो पोता है नरसिंह इसको भी साधु का आशीर्वाद दिलवाना चाहिए. She approached and she offered the respects to the sadhu. Also the Narsiंह also offered the respect. तो नरसिंह और उनकी दादी दोनों गए वहां पर प्रणाम किया. And then she spoke the whole thing that one of the greatest grief I have, that I have this grandson cannot even speak. तो उस समय उन्होंने कहा कि ये जो मेरा पोता है नरसिंह है ये कभी कुछ बोल नहीं पाता है तो आप आशीर्वाद दीजिए. And at that time suddenly this sadhu told to this Narsiंह. उस समय साधु ने तुरंत उस नरसिंह से कहा कि राधा कृष्ण बोलो. क्या कहा? राधा कृष्ण कहो. और जैसे ही उस साधु ने कहा तुरंत नरसिंह ने बोलना शुरू कर दिया राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरि बोल. As soon as the sadhu asked the nurse, a very small Narsiंह, 8 years Narsiंह, to speak, chant the names of Radha and Krishna, immediately Narsiंह started speaking and he started chanting na Radha Krishna, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Krishna. And then the grandmother became very happy and they offered the obeisances and then they left. But after some time, they couldn't see that sadhu. उसके बाद में किसी ने उन साधु को देखा नहीं. So some people say that actually Shiva only appeared in the form of that sadhu in that Shiva temple to give this Radha Krishna. So this Narsiंह Mehta was always chanting the name of Radha Krishna. And he was like always serving the Vaishnavas, chanting the name of Radha Krishna, serving the Vaishnavas, and the whole narration how finally his grandmother also left the body and then his elder brother Vamshidhar got married. And then he was having this what is this? Sister-in-law, yeah, Bhavi. So Narsiंह Mehta के जो भाई थे उनका विवाह हो गया. दादी ने शरीर छोड़ दिया. And she was very cruel. She was always torturing Narsiंह Mehta. She was not giving proper food and giving different kinds of troubles. इनकी जो भाभी थी नरसिंह की वो बहुत दुष्ट थी. वो सदैव अलग प्रकार से कष्ट देती रहती थी, सही समय भोजन नहीं देती थी. Even when Narsiंह got married, she was giving trouble to Narsiंh's wife also. जब नरसिंह का विवाह हो गया तो उनके पत्नी को भी उन्होंने कई प्रकार से कष्ट दिया. And there it's mentioned that after eventually Narsiंह Mehta got completely frustrated with his family. And he just left the family. तो नरसिंह बहुत दुखी हो गए ऐसे प्रतिदिन के कष्ट से और बहुत कष्ट मिलने के कारण आखिर में उन्होंने घर छोड़ दिया. और घर छोड़ के in Gujarat there is a place which is called Junagadh. In Gujarat there is a place which is called Junagadh where Narsiंह was living. And then he just went to a very dense forest. वहां पे पास में एक बहुत ही घना जंगल था. वहां पर नरसिंह चले गए. And that dense forest, there were like so many ferocious animals. The lion, tigers were there. और तो उस जंगल में बहुत ही भयानक जानवर थे. शेर, चीता, बाघ, भालू थे. But Narsiंह Mehta just went there and he decided to give up the life also. और उस समय नरसिंह मेहता ने यह भी निश्चय कर लिया मैं अपना जीवन त्याग दूंगा. और उस समय उन्होंने अचानक क्या देखा? At that time suddenly saw in that dense forest there was a very ancient temple. वहां पर एकदम वीरान में उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही प्राचीन कोई मंदिर दिखाई दिया. And that temple was also completely neglected. वहां पूरी तरह से जर्जर हो चुका था मंदिर. But in that temple he saw a very beautiful, very big, large शिवलिंगा. तो वहां पर देखा जाता है कि उन्होंने देखा कि बहुत ही विशाल, बहुत ही सुंदर शिवलिंग थी. So as soon as he saw the शिवलिंग, he remembered his childhood days. जैसे उन शिवलिंग को देखा उन्हें स्मरण हुआ कि कैसे उनकी जब वाणी चली गई थी तो शिव जी कृपा से उन्हें वाणी प्राप्त हुई थी.
he remembered how by the blessings of Shiva he got this power of speech. So at that time he decided that now I will surrender my life to Shiva, and unless until he will not give the blessings, I will not take anything. उन्होंने तुरंत विचार किया कि मैं अपना पूरा जीवन जो अभी शिव जी को समर्पित करूंगा, जब तक वो मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे मैं अब अन्न जल भी ग्रहण नहीं करूंगा. He gave up the eating and drinking water also. So he started fasting. तो उस समय तुरंत उन्होंने वहां पर उपवास प्रारंभ किया, and he just embraced that शिवलिंग it's mentioned. तुरंत वहां ने उन्होंने शिव जी का जो लिंग था उसको आलिंगन दिया, और आलिंगन देकर जोर जोर से रोने लगे. And at that time started crying constantly, and with his tears he was like bathing शिवलिंगा, और अपने अश्रुओं से वहां उन्हें शिव जी को अभिषेक कर रहे थे. One day passed, the whole night passed, second day passed, second night. तो पहला दिन चला गया, रात चली गई, दूसरा दिन चला गया, रात चली गई, कोई अन्न नहीं, कोई जल नहीं, no water, no food. Third day, fourth day, and like this 7 days and 7 nights. It's like निर्जल व्रत for 7 days. तो 7 दिन 7 रात्रि केवल शिव जी को पकड़ के रखा था और रो रहे थे, पकड़ के रखा कि अब तो मैं अपना जीवन नहीं रखूंगा, ऐसा निश्चय कर लिया था. So like this he was doing this for 7 days, and it's mentioned there that at last after the 7 days Lord Shiva appeared there. Shiv Shankar Mahadev ki jai. So it's not that if anyone will do any fasting then Lord will appear. Most important is the intensity, like Srila Prabhupada says, one should chant like the helpless child, one should cry like a helpless child. जैसे श्रील प्रभुपाद कहते कि एकदम आर्त भावना से जैसे असहाय बालक पुकारते अपना को, वैसे प्रार्थना करनी चाहिए. तो केवल उपवास ही पर्याप्त नहीं है, उपवास तो कई लोग करते हैं, तो हर उपवास के बाद भगवान आते नहीं होंगे, भगवान के भक्त भी प्रकट नहीं होते. But by seeing the intensity of Narsi, finally Shiva appeared there, and it's mentioned. तो नरसी की उस आर्त भावना को देखकर शिव जी वहां पर प्रकट हुए, और जब प्रकट हुए तो फिर शिव जी said that I am really pleased with your prayers, I really want to give them benediction. तो वहां पर शिव जी ने कहा कि मैं तुम्हारी प्रार्थना प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं, because my darshan doesn't go in vain. मेरा दर्शन जो व्यर्थ नहीं जाता. If someone gets my darshan, he will get some blessings. अगर किसी कोई मुझे दर्शन प्राप्त करता है तो निश्चित रूप से उसका आशीर्वाद मिलना चाहिए. मांगो जो मांगना चाहते हो. So Shiva is always ready to give anything. And because this Narsi's heart was very pure, what he said, just give me something which first initially said that I don't want anything. मैं आपका दर्शन कर ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए. Said a few times. But when Shivji insisted, at that time finally said that just give me something which is most dear to you. This kind of pastime happened twice. I will mention another one also. Just give me something which is most dear to you. तो उस समय जब पहले नरसिंह मेहता ने मना किया कि मुझे नहीं कुछ नहीं चाहिए, और जब अंत में बहुत शिव जी कहने लगे तो फिर वहां पे नरसिंह मेहता ने कहा कि ठीक है, आपको सबसे ज्यादा जो प्रिय है वो मुझे दीजिए. As soon as Shiva heard this, he became completely like got into trouble. जैसे इंसान तो काफी धर्म संकट में पड़ गए कि क्या मांग लिया, सबसे प्रिय चीज. So immediately like Lord Shiva closed his eyes, and then whatever is dear to his heart, which was there inside, that immediately started seeing that. And then he said that I can give you something else. तब शिव जी कहा कि नहीं, कुछ और मांग लो, उसको छोड़ के और कुछ दूंगा. But then Narsi became very adamant. He said, I will take only which is most dear to you. मैं तो केवल वही लूंगा जो आपको सबसे प्रिय है. So as soon as Shivji heard this, Shivji started smiling. And there it's mentioned that Shivji immediately caught hold of his hand of Narsi. तुरंत उस समय शिवजी ने नरसी के हाथ को पकड़ लिया, और जैसे हाथ को पकड़ा तो वहां पर वर्णन किया जाता है कि तुरंत शिवजी उसे लेकर चले गए श्री वृंदावन धाम की जय. So immediately Shivji transported him to Shri Vrindavan Dham. Not only Vrindavan Dham, it's mentioned that Shivji immediately brought him to Mansarovar. I heard in one of the lecture. Shivji ने Mansarovar में लेके आए, and Shivji made him bathe in that Mansarovar. और शिवजी नरसिंह मेहता को तुरंत मानसरोवर स्नान कराया.
So as soon as both of them came out of the Mansarovar, both of them assumed the form of the gopis. जैसे दोनों बाहर आए तो दोनों को गोपी का रूप प्राप्त हुआ, और उस समय शिव जी सीधा उसे राधा कृष्ण के रास लीला में प्रवेश करवाए. हरि बोल. शिव जी immediately took the Narsi to the Ras Leela of Radha and Krishna. And there Shivji mentioned, they are the like most dear and most worshipable to my heart, and they are Radha and Krishna. वहां पर उन्होंने शिवजी ने बताया कि मेरे हृदय को सबसे अधिक प्राणों से प्रिय जो है वह है राधा और कृष्ण, जिनका उन्हें दर्शन कराया. And there's a whole description of how Narsimha Mehta took the darshan of Radha Krishna, and at last Shivji was having one what you say, mashal, sir, you can say candle light, which he was holding in the Ras Leela. तो शिवजी गोपी के रूप में जो थे उनके हाथों में एक मशाल थी जो उन्होंने पकड़ कर रखी थी उस रास लीला के बीच में जहाँ राधा कृष्ण और गोपियां नाच रहे थे. So immediately शिवजी handed over that candle to Narsi. तो शिवजी ने तुरंत वहां जो है मशाल को नरसी के हाथों में दे दिया, और नरसी जो गोपी के रूप में था वह उस मशाल को पकड़ रहा है. नरसी was holding that candle, that mashal. And then he got absorbed in seeing the dancing pastime of Radha and Krishna. तो नरसिंह जो राधा कृष्ण के नृत्य और रास को देख रहा था, इतना डूब गया कि वो जो मशाल थी जलते 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 उसने पूरी जल गई, और फिर नरसिंह के हाथों को भी आग लग गई. So it's mentioned there that that candle was burning, and this Narsi got fully absorbed in the transcendental beauty of Radha and Krishna, the Ras Leela of Radha and Krishna. He couldn't even recognize that the whole candle also got burnt and his hand also started burning. और उस नरसी का जो हाथ था वो हाथ जलने लगा मशाल की तरह, पूरा हाथ ऐसे जलने लगा. And the Narsi's hand started burning like the candle. And at last it's mentioned that finally Radha Krishna looked at Narsi, that gopi. और अंत में तो बताया राधा कृष्ण ने देखा कि नरसी गोपी बीच में खड़ी थी जिसका हाथ दीप के रूप में जल रहा था. Immediately Krishna ran and Krishna caught hold of the hand of this Narsi gopi. So immediately Krishna went and got hold. तुरंत नरसी का उन्होंने हाथ पकड़ लिया, और जैसे ही श्री कृष्ण का स्पर्श हुआ तो अग्नि पूरी बुझ गई और हाथ पूरा स्वस्थ हो गया. So as soon as Krishna caught hand of Narsi, immediately he got cured from this burning of fire. And then there is mentioned that Krishna became very pleased because Shiva brought this Narsi, and then Krishna gave the Pitambar. Krishna gave the personal deity of Krishna. And it's mentioned that I think three things he got. He got the deity, he got the Pitambar. I think he got also flute. I think Radharani gave something and Lalita also gave something. तो वहां पर बताया नरसिंह मेहता को फिर कृष्ण ने, राधारानी, ललिता ने श्री मूर्ति दिया था, पीतांबर दिया, वंशी दिया था कुछ. And at that time finally Radha Krishna ordered Narsi that now you have to go back in the earthly planets and you have to preach the glories of Radha Krishna Bhakti. उस समय राधा कृष्ण ने नरसिंह पर आदेश दिया कि तुम वापस जाओ और फिर अपने उस इस पृथ्वी की जो लीला है जिसमें तुम गृहस्थ जीवन में हो उसमें जाकर तुम राधा कृष्ण की भक्ति का प्रचार करो. So there it's mentioned that finally Narsimha Mehta came back and he became one of the greatest devotee who wrote lots of bhajans speaking about Radha Krishna Leela. So yes, this is the one of the very heart-touching pastime I liked very much. How Shivji gave entrance into the Ras Leela to Narsimha Mehta. Also, like just a few days before here in Vrindavan, I was checking most of you must be knowing, like in Vrindavan, we have different Goswamis, deities are there, which are the self-manifested deities, not ordinary deities. And one of the deity, I don't know how many of you know, is a Bake Bihari temple. I think many of you might be knowing. So next to Bake Bihari temple is another temple, which is called as Radha Vallabh. तो वहां पर वृंदावन में कई हमारे आचार्यों के, गोस्वामियों के
अलग अलग मंदिर है जहाँ पर श्री कृष्ण अलग अलग रूप में विराजमान है। उसी में से एक प्रमुख मंदिर है बांके बिहारी, बांके बिहारी के ठीक बगल में राधा वल्लभ भी है। And it's mentioned by many of the devotees here, we hear also that Radha Vallabh is not different from Radha and Krishna. कि राधा वल्लभ जो राधा कृष्ण से अलग नहीं, मतलब राधा कृष्ण का एक जुगल रूप है। Radha Krishna's combined form is Radha Vallabh. That's why if you take darshan of Radha Vallabh, you'll see that a half side of Vallabh is dressed like Krishna and half side is dressed like Srimati Radharani. इसलिए राधा वल्लभ का दर्शन करें, आप देखेंगे उनका आधा भाग जो है कृष्ण की तरह श्रृंगार किया जाता है और आधे भाग का श्रृंगार राधा रानी की तरह किया जाता है। It's a very special thing. So because Radha and Krishna are combined together. But very just 2 days before I heard this pastime, how Radha Vallabh appeared. परंतु 2 दिन पहले मुझे ये कथा सुनने मिली कि राधा वल्लभ प्रकट कैसे हुए थे। So it has also connection with the glories of Lord Shiva. So there's a whole pastime of like in Mathura there was a very great Brahmana, his name was Atmadev. तो मथुरा में एक कथा आती कि एक बहुत महान ब्राह्मण थे जिनका नाम था आत्मदेव, एंड दिस आत्मदेव फैमिली वाज वर्शिपिंग शिवा फ्रॉम मेनी जनरेशंस। आत्मदेव का जो परिवार था कई कुलों से, कई उनके परिवार में कई पीढ़ियों से वह शिव जी की आराधना करते थे और बहुत निस्वार्थ भावना से, एंड विद अ वेरी सेल्फलेस एटीट्यूड दे वर सर्विंग लॉर्ड शिवा फ्रॉम many generations. कई पीढ़ियों तक उन्होंने सेवा की। So at last it's mentioned that finally Shiva became very pleased with their worship because they were not asking for any material benediction. चूंकि वो शिव जी से कोई भौतिक वस्तु नहीं मांग रहे थे, इसलिए शिव जी उनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। And finally Shiva appeared in front of this Atmadev Brahman. Finally शिव जी प्रकट हुए आत्मदेव ब्राह्मण के सामने और आत्मदेव ब्राह्मण से कहा कि आपके कई पीढ़ियों से आपने हमारी आराधना की है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया हूं आपसे, इसलिए मैं आपको वरदान देना चाहता हूं। सेम काइंड ऑफ पास टाइम। तो वहां पर आत्मदेव ब्राह्मण को कहा कि मैं तुम्हारे आई एम प्लीज्ड विथ योर वर्शिप, सो आई वांट टू गिव द बेनेडिक्शन। सो आत्मदेव आल्सो सेड दैट नो, आई डोंट वांट एनीथिंग, वी जस्ट वांट टू वर्शिप यू, वी डोंट वांट एनीथिंग रिटर्न। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा हम तो केवल आपकी पूजा करना, आपकी आराधना करते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए बदले में। बट अगेन एंड अगेन व्हेन शिवजी वाज इंसिस्टिंग, देन फाइनली आत्मदेव ब्राह्मण also said the same thing. The thing which is most dear to you in the core of your heart, आपके हृदय के अंदर में आपको सबसे ज्यादा कुछ प्रिय जो है वो वस्तु में प्रदान कीजिए। And as soon as Shiva heard this, Shiva immediately closed the eyes. And it's mentioned that when Shiva closed eyes, Shiva started taking darshan of Radha Krishna in his heart. शिव जी अपने हृदय को अंदर झांक कर देखने लगे, मेरे हृदय में सबसे प्रिय चीज क्या है इस समय, और उन्होंने क्या देखा, उनके हृदय के अंदर में राधा और कृष्ण का उन्हें दर्शन हुआ। So then Shiva opened his eyes. शिव जी ने अपनी आंखें खोली और शिव जी ने आंखें खोलकर अपने हृदय में जो राधा कृष्ण है उसी को निकाल कर बाहर रख कर दिया। The same Radha Krishna which were residing in the heart of Shiva, Shiv just took out and gave to that Atmadev Brahman. और वो राधा कृष्ण जो बाहर निकले वही बन गए राधा वल्लभ, श्री राधा वल्लभ भगवान की। So that same Radha Krishna who appeared from the heart of Shivji became the Radha Vallabh. And then there's a whole thing like how this Radha Vallabh deities are worshipped by Atmadev. And finally, there's another great devotee, his name was Harivansh. And so that sampradaya became like a Harivansh sampradaya. So that Harivansh finally got those deities. Srimati Radharani came in the dream of Harivansh and said that you go in Mathura and get that deities, get my deities from this Atmadev Brahman. So these are like there are many, there's endless pastimes. I just thinking like, so like this, there are many pastimes where these glories of Shivji's has been spoken, and also we hear from this very nice compilation of Sri Murari Gupta, which is called as Chaitanya Charit Mahakavya, where it's mentioned how Lord Chaitanya Mahaprabhu, when he got the darshan of Shivji,
he offered very nice prayers. Namo namaste tridasheshwaraya bhutadinathaya mrudaya nityam Ganga tarango thitaballa chandra chudaya gauri nayanosavaya. There is offering Namo namaste tridasheshwaraya. I offer my obeisances to the controller of Tridasheshwaraya. So three means also like Brahma, Vishnu, Mahesh also you can say. But Tridash means 33 Koti Devata. One who is the controller of all the demigods. I offer my obeisances to that. Namo namaste Dasheshwaraya Bhutadinathaya. And he is the Nath. He is the master of Bhuta. Bhuta means Bhut means also ghost. Bhut का अर्थ एक होता है भूत पिशाच भी होता है, but Bhut means also living entities. He is the master of all the living entities. Mrudaya Nityam. He is most compassionate. He is always eager to give the devotion of Krishna. And Ganga Tarongitita, and Ganga arises from Shivji's jata. So it's mentioned in Bhagavatam also we hear. Just a few years before we were in Kedarnath, and we are also discussing this pastime of how when Bhagirath performed the austerities to make Ganga descend on this planet, finally Mother Ganges became very pleased with the austerities of Bhagirath. And she mentioned that I am ready to come, but there are few conditions. And the first condition was that my current, my flow is very heavy. If I'll come, I will pierce the Mother Earth and I'll go to Patal. So I want someone who can control my force. तो उस समय बतलाया जाता है कि श्रीमद् भागवत में वर्णन किया कि भगीरथ महाराज ने तपस्या की थी माता गंगा को इस पृथ्वी पर प्रकट होने के लिए। तो उस समय भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जब तैयार है तो उन्होंने कुछ बातें कही थी। उसमें पहली बात यह थी कि मैं आने को तैयार हूं, परंतु मेरा जो प्रवाह रहेगा, मेरा जो तीव्रता है, उसको धारण करने वाला कोई होना चाहिए, अन्यथा मैं पूरा पृथ्वी को भेद करके पाताल तक चले जाऊंगी, पृथ्वी टिक ही नहीं पाएंगी मेरे प्रवाह के सामने। So at that time it's mentioned that Bhagirath again performed the austerities to please Lord Shiva. उस समय बताया जाता है कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भगीरथ महाराज ने पुनः तपस्या की। And at that time Lord Shiva appeared. और उस समय शिव जी प्रकट हुए और शिव जी को जैसे पता लगा, as soon as शिव जी came to know that Ganga has been directly emanated from the lotus feet of my Lord Shri Krishna, और शिव जी को जब पता चला कि मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण के चरणों से प्रकट हुई है गंगा और वो गंगा आने वाली है, he became very ecstatic and very jubilant just by hearing this. That is another just managerial reason, is a secondary reason that I have to hold the Ganga. But the internal ecstasy we were having is to hold the water coming from the lotus feet of my master. बाहरी कारण एक था कि अब गंगा के वेग को धारण करना था, परंतु आंतरिक कारण था कि मेरे प्रभु के चरणों की गंगा है, उसको मैं अपने मस्तक पर लेना चाहता हूँ. There's a famous bhajan of Bhaktivinoda Thakur also. एखोनो बुझिनो प्रभु तुम्हारे शरण अशोक भयामृत पूर्ण सर्वकारण. So there also mentions about what's that line? Shivatva labhila, something like that. By accepting the water of Lord's lotus feet, Shivji got the name Shiva. Shiva means the most auspicious. तो आप भजन में श्री भक्तिविनोद ठाकुर जो बतलाते हैं कि शिवजी, ये शिव शब्द नाम कैसे प्राप्त हुआ, जब उन्होंने अपने मस्तक के ऊपर धारण किया गंगा को, जो भगवान के चरणों से प्रकट हुई है. It's mentioned that at that time, like Mother Ganges was having little bit of kind of pride. उससे बताया जाता है कि माता गंगा को थोड़ा अभिमान था कि मेरा प्रवाह सबसे तेज है. तो तुरंत वहां पर वर्णन किया जाता है शिवजी has opened his jata. शिवजी ने अपनी जटा को खोल दिया. So Shiv opened and the Mother Ganges
immediately came on the head of Shiva. तो उस समय माता गंगा जो शिव जी के मस्तक पर आई, और जैसे ही मस्तक में आई जटाओं के अंदर, as soon as Mother Ganges entered in the matted hair of Shivji, she completely disappeared. जैसे अंदर प्रवेश की पूरी अंदर वो प्रवेश करके गुम हो गई, एक भी बूंद बाहर नहीं दिखाई दिया, और ऐसी उलझ गई कि वो बाहर ही निकल नहीं पाई. And she got like so much entangled in the hairs of Lord Shiva that cannot come out of that. So at that time it's mentioned that then Mother Ganges started, Bhagirath again started offering prayers to Shivji. Please kindly allow Ganga to come out of your hairs. तो उस समय भगीरथ महाराज ने फिर से प्रार्थना की, कम से कम गंगा को आने तो दीजिए आपके केशों से बाहर. सो एट द टाइम उन्होंने कहा कि केश की एक जो केश था उसको थोड़ा उन्होंने हिलाया. सो एट दैट टाइम वन ऑफ द हेयर जस्ट लाइक एक बाल को निचोड़ दिया उन्होंने, ऐसा कहा जाता है शिव जी ने. और शिव जी ने जो एक बाल निचोड़ा उसकी जो धारा निकली, द वन few drops which came out of the one of the hair of Lord Shiva, that has emanated from Gangotri and which is flowing now as Mother Ganges. जो एक ही धारा निकली थी गंगा के शिव जी के मस्तक से, वही गंगोत्री से प्रारंभ हुई जो गंगा के रूप में कहा जाता है. तो इस तरह से यह विशेष शिव जी की महिमा है. श्री महादेव जी की जय. श्री राम गोविंद मुकुंद शौर्य, श्री कृष्ण नारायण वासुदेव, इत्यादि नामा मत पान मत्त, भुंगादि पख्याखिल दुख हंत्रे. लॉर्ड चैतन्य is offering this prayer. चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे कि श्री राम गोविंद मुकुंद शौर्य, श्री कृष्ण नारायण वासुदेव, इति आदि नामामृत पान मत्त, जो ऐसे नामों का अमृत को पान करने में जो हमेशा डूबे रहते हैं. किस तरह से? जैसे कमल का रस लेने के लिए भृंग मतलब like bumblebees, they fully get intoxicated in relishing the nectar of the lotus flowers. Similarly, Shivji is like that bumblebee who is always absorbed in relishing the nectar of the holy name. So in this way, there is a whole, there's so many pastimes where we hear about Gaura Gaura Boli Sadai Nache Nija Jane Gaura Bhakti Yache. It's mentioned by Srila Bhaktivinoda Thakur also that in Navadip Mandal in Mayapur Dham also, Shivji, he has a damru and he plays the damru, and what he chants? Gauranga, 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 Gauranga. In this way, he keeps chanting this mantra. And it's mentioned that Kona Kale Satyuge Deva Maheshwara Shri Gauranga Boli Nritya Karila Vistara. Once upon a time in Satyuga, what happened? Lord Maheshwar was dancing in very ecstatic mood, and he was constantly chanting Gauranga, 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 Gauranga. एक समय की बात, एक सत्युग में महादेव जी अपने हाथ में डमरू लेकर जोर जोर से नाचने लगे और पूरा दिगंबर रूप उन्होंने धारण कर लिया और जोर से उच्चारण करते गौरांग गौरांग. और उस समय तुरंत वहां पर पार्वती, एट दैट टाइम पार्वती अपीयर्ड. पार्वती जिज्ञासे तबे देव महेश्वर, किवा से गौरांग देव बलह अमर. At that time Parvati inquired, I have always heard you chanting the name Rama, Rama, Krishna, Krishna, but first time I saw that I'm seeing that you're chanting the name of Gauranga. आप पहली बार आज गौरांग का नाम ले रहे. तुम्हारा अद्भुत नृत्य करील दर्शन, शुनियान गौरांग नाम गले मोर मन. I have always seen you dancing, but today the dance which you are performing by chanting this specific unique name is very different dance. This dance is different and this Sankirtan is also different. ऐसे मैंने आपका नृत्य पहले भी देखा है, परंतु आज का नृत्य बहुत ही अद्भुत है. ऐसा नृत्य, ऐसा कीर्तन मैंने कभी देखा नहीं. शुनिया गौरांग नामो गले मोर मन. And my heart started melting just by hearing this Gauranga.
ये गौरांग शब्द क्या है, ये इतना मेरे शरीर को, मेरे हृदय को प्रसन्न कर रहा है, मेरा हृदय द्रवित हो रहा है। एते जे सुनीचे मंत्र तंत्र एत काल, से सब जाने लो मात्र जीवेर जंजाल। Till now I heard so many mantras from your lotus mouth, but all of them were not so much purifying for the living entity as much as this Gauranga Naam is there. This is the realization of Parvati. So please kindly tell me about this Gauranga. And there Mahadev speaks, Parvati Katha Shuni Deva Pashupati, Shri Gauranga Smari Kahe Parvati Prati. So at that time, remembering Lord Gauranga Mahaprabhu, immediately Mahadev started saying to Parvati, Radha Bhavalaya Krishna Kalite Eibara, Mayapure Shachi Garbe Haive Avatar. Shri Krishna, assuming the form of mood of Srimati Radharani, is going to appear in Kali Yuga, in Mayapur, from the womb of Mother Shachi. राधारानी के भाव को अंगीकार करके श्री कृष्ण कलयुग में प्रकट होंगे मायापुर धाम में शची माता के गर्भ से, और उस समय यह नाम उनका होगा, कीर्तन रंगे ते माती प्रभु गौरमणि, वितरिवे प्रेम रत्र पात्र नाही गणी. At that time, Lord will himself perform the Sankirtan pastime, and irrespective of any qualification, he will distribute this love. उस समय भगवान प्रकट होंगे और कीर्तन का प्रचार करेंगे और बिना किसी योग्यता को देखे सभी को प्रेम का वितरण करेंगे. यही प्रेम वन्या जले जे जीवन भासे, दिक्तार भाग्य देवी जीवन विलासे. Anyone who will not get benefited by this flood of love, he is the most unfortunate person. जो व्यक्ति इस प्रेम रूपी बाढ़ में नहीं डूबेगा, वास्तविक वो सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली होगा. दिक्तार जीवन, and waste is his life, उसका जीवन व्यर्थ है. So in this way, Lord Mahadev said, Prabhura pratigya smari preme jai bhasi, dhairya na dhare man chhadila kashi. So at that time, immediately Shivji took the vow that now my Prabhu is going to appear in Kali Yuga. So I will leave the Kashi and I will stay in Navadvip, at the boundary of Navadvip. That is called as Simanta Dvip, let's say. So I will leave Kashi and I will go to मायापुर नवद्वीप. तो उस समय बतलाया जाता है कि जब वो चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करने लगे, तुरंत वहां पर शिव जी ने प्रतिज्ञा ली कि मैं अब तुरंत काशी का त्याग करूंगा और जाकर मैं नवद्वीप के अंत में जो कि सीमा होती है, जिसको सीमांत, वहां पर मैं रहकर श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करूंगा. मायापुर अंत भागे जानवीर तीरे, गौरांग भजिब आमी रहिया कुटीरे. So I will make one hut in Mayapur and then I will do the bhajan of Gauranga. So in this way it's mentioned, oh, I just forgot. I didn't realize the time. It's already 11. Please kindly forgive, I just got absorbed in just narrating. So this whole description, you can read from Navadvip Dham Mahatmya. Bhaktivinoda Thakur has given a very nice description of this Simantadvip, that how Parvati also performed the austerity to get the blessings of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and Lord Chaitanya Mahaprabhu gave darshan to Parvati. That is called a Simantadvip. So like that, the Shivji is a very special devotee, I've seen. And I heard from many, even in ISKCON, we have heard many devotees who have come in Krishna consciousness. Before coming to Krishna consciousness, they also got the blessings of Shiva. Personally, I also remember before coming to Krishna consciousness, in my early days of Krishna consciousness, as soon as I got this Hare Krishna Mahamantra, I was studying in the college. So we are not allowed very much to also practice Krishna consciousness very freely at our home. So daily I used to go in one of the Shiva temple near our house. And I used to chant this Hare Krishna Mahamantra in front of the Shiva Linga. I used to be very much purified just by chanting this Mahamantra. So once again, thank you very much. Sorry, I was too much spontaneous today.
I was not very much prepared. Whatever I just remembered, I just spoke out. There's so much to say. तो क्षमा चाहते हैं कि कुछ अधिक समय लिया, मैं पूरा ऐसा व्यवस्थित प्रकार से शायद ना बता पाया हूँ, परंतु आप सभी का आशीर्वाद आप दीजिए मुझे. And again, I would like to express my heartfelt gratitude to all the devotees of Shamdesh, especially राधा भाव गौर प्रभु. मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगा सभी श्यामदेश के भक्तों, विशेष रूप से राधा भाव गौर प्रभु, who has given me this opportunity to purify myself by remembering these glories of Lord Shiva, जिन्होंने अवसर प्रदान किया मुझे शिव जी की महिमा को गाकर अपने हृदय को पवित्र करने के लिए. So, Hare Krishna, Prabhuji. Hare Thank you Krishna, very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. No problem at all with the timing. We are very flexible, and in fact, we would still love you to go forward if you have time. There's no problem at all. It was a wonderful class, very nectarian, and I'm sure everybody realized it in this wonderful time of Shivratri. And anyone would like to add anything, or there's so many? I don't know. There's so many senior Vaishnavas here. That's okay. We would like to extend some question answers. If anybody wants to ask any question, they can raise your hands quickly. They can just put okay. We have Rashmikant Nath Prabhu. आप अनम्यूट कर लीजिए प्रभु जी, पूछिए, प्रश्न पूछिए आपका. रश्मिकांत प्रभु. रश्मिकांत प्रभु आप पूछिए. हरि बोल. Hare Krishna Prabhuji, since Rashmikant Prabhu is taking time, can I ask? Hare Krishna. Who's this? Kripalu here, Kripalu. Yeah, go ahead. Hare. Prabhuji, I would like to request Ananta Sheshadas Prabhuji, when you are telling about Narsi Mehta's story, you said you will be telling another story similar to that. So if you can please briefly say about that. No, he mentioned that. Sorry. Yeah, I mentioned about this Radha Vallabh deities. Okay. That's the same. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभुजी. प्रभुजी मैं पूछूं क्वेश्चन? आप हाथ ऊपर नहीं किया लेकिन. Good. हरे कृष्ण प्रभुजी. धन्यवाद प्रणाम प्रभुजी. बहुत कृष्ण कथा और भगवान शिव की जो आपने महिमा गाई है बहुत अच्छी है. थैंक यू सो मच. प्रभुजी मेरा क्वेश्चन है, आपने शुरू में जैसे हेलो. अच्छा अर्जुन जी. यस. माय नेम इज अर्जुन जी. पूछिए प्रभुजी एक्चुअली मेरे को एक शंका है. आपने बांके बिहारी जी की मतलब नाम का मतलब गुणगान किया था शुरू में. हम वृंदावन में जब से कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए हैं जाते हैं और दूसरे भक्त भी जाते हैं, तो जब हम बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए मतलब जो वहां के ब्रह्मचारी है उनको बोलते हैं कि हमने वहां भी जाना है, तो वो मना कर देते हैं. मेरे मन में ये है कि भी जो इस्कॉन के वहां भगत हैं या ब्रह्मचारी हैं या वृंदावन टेम्पल के जो मतलब डिवोटी हैं, वो मतलब हमें वहां जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते, रोक देते हैं. इसका क्या कारण है? हरे कृष्णा. Should I answer in Hindi only or English? हिंदी इज बेटर. सब हिंदी जानते हैं. अच्छा ठीक है. तो प्रभु जी ने पूछा है कि ऐसा क्यों है कि कुछ ब्रह्मचारी रोक देते हैं. तो वैसे मैंने आज पहली बार ही सुना कि कोई रोकता भी होगा. मैंने तो आज तक सुना नहीं था. शायद किसी ने अगर कहा भी हो तो मेनली ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है. एक रीजन होता है कि हम अधिकतर जब वृंदावन में जाते हैं तो मेन हमारा जो फोकस होता है कि हम श्री कृष्ण का अधिक से स्मरण करें और श्री कृष्ण भावनामृत हो. परंतु कई बार बांके बिहारी ऐसे कुछ मंदिर होते हैं जहाँ पे पब्लिक बहुत ज्यादा होती है. इट्स लाइक एक्सेसिवली क्राउडेड. वहां पे जहाँ पर आपको जो मेन जो होता है, जैसे कि लाइक जब हम इस्कॉन के मंदिर में रहते, कृष्ण बलराम मंदिर में,
हमें कीर्तन मिलता है, हमें भागवतम श्रवण करने मिलता है, भगवान की लीला भी सुनने मिलती है। ये सभी जब विशेष रूप से जो परिपक्व नहीं है, जो भक्ति में है, वो अगर ये श्रवण कीर्तन अगर न रहे तो उसका मन जो है बाहरी चीजों से भटक सकता है और वो शायद कंफ्यूज हो जाए। तो कुछ कुछ अलग रीजन हो सकते हैं इंडिविजुअल, वो जिन भक्तों ने कभी कहा हो। तो मेनली एक चीज कारण होती है, बहुत भीड़ रहती है, कई बार बाकी बारी में चोरी भी बहुत होती है, तो शायद वह भी कारण हो सकते हैं। ऐसा कुछ इस्कॉन वालों की दुश्मनी नहीं है बाकी बिहारी से, दैट इज अवर कृष्णा ओनली। ऐसा नहीं कि उनका कृष्णा अलग है, हमारा कृष्णा अलग है, हमारे श्याम सुंदर है तो बाकी बिहारी इसको दूसरी पार्टी है, वैसा कुछ नहीं है। वो अपने ही कृष्ण है, कुछ व्यक्तिगत अलग कारण होते हैं। तो मतलब प्रमुख रूप से जब हम जाते हैं तो भीड़ अधिक रहती है वहां पर, और वहां पर चोरी भी कभी कभी होती है, ये कारण होता है। और कई बार उतना भक्त जो आनंद नहीं ले पाते जितना वो कृष्ण बलराम मंदिर में कीर्तन में जो आनंद लेते हैं। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, वो इंडिविजुअली और उसको जानना पड़ेगा, कुछ कुछ कारण होगा। विशुभ से हमारे जब वरिष्ठ वैष्णव हमारे हमें कुछ कहते हैं तो कुछ उसके कारण होते हैं, कई बार हम शायद जान नहीं पाते होंगे, परंतु उसका कुछ जरूर महत्वपूर्ण कारण होगा भी। हम भी जिस तरह से मान हम श्री लेते चैतन्य हैं महाप्रभु लीला में देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन के विषय में इतनी महिमा कही। चैतन्य महाप्रभु सदैव वृंदावन जाने के लिए तैयार रहते थे, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख भक्तों में से एक जगदानंद पंडित, और जगदानंद पंडित जब वृंदावन जाना चाहते तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया। हालांकि हम जानते हैं जगदानंद पंडित और कोई नहीं, स्वयं सत्यभामा देवी ही है, भगवान की अपनी जो रानी थी वही जगदानंद पंडित के रूप में आई है। परंतु उस समय हम देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगदानंद पंडित इतने महान भक्त हो के उनको कभी अनुमति नहीं दी, और आखिर में जब अनुमति मिली उन्हें तो 2 कंडीशंस रखी गई थी। कौन सी थी? पहली कंडीशन थी कि बहुत अधिक समय वृंदावन में रुकना मत, जाना और तुरंत वापस आना। और दूसरी थी जितना समय वृंदावन में रहो तो रूप सनातन के साथ में ही रहना। सो कई बार हम समझ नहीं सकते, इसलिए अच्छा हो कि कोई वरिष्ठ हो हमारे साथ में और वो जैसे हमें बताते हैं उसके अनुसार हम दर्शन लें। ठीक है भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू सो हरे मच। कृष्ण। हरे कृष्ण। और Anything more? और किसी का प्रश्न किसी का है? प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कौन बोल रहा है? रश्मिकांत प्रभु जी। हाँ बोलिए, रश्मिकांत बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके पद कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रभु जी, मेरा 3 प्रश्न था। जैसे कि आपने बोला कि व्यासदेव, मैं ये जानना था कि व्यासदेव के, भगवान व्यासदेव की जो पत्नी का उनका नाम क्या था, और नरसिंह मेहता का जो उनका जो पत्नी है, नरसिंह मेहता जंगलों में जाने के बाद उनके पत्नी का क्या हुआ, और वो गृहस्थ आश्रम में रहे या वो भी कहीं मतलब भक्ति में लगे या तपस्या में चले गए, ये जानना था। और तीसरा क्वेश्चन है कि जिस व्यक्ति को भगवान शिव जी के जो कृपा प्राप्त होने के बाद वो कृष्णा भक्ति में आ चुका है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद। पहला प्रश्न, व्यासदेव की पत्नी का नाम थोड़ा टेक्निकल प्रश्न है जिसका एग्जैक्ट जवाब मुझे अभी स्मरण नहीं है, और कोई भक्त जानते हैं बता सकते हैं। कुछ नाम था बट आई डोंट रिमेम्बर। दैट्स नॉट, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, बट बहुत अधिक हमारी कुछ प्रश्न होते हैं जो आध्यात्मिक हमारी प्रगति के लिए बहुत सहायक होते हैं। वत्ती का उनका नाम। तो हाँ, धन्यवाद। दूसरा प्रश्न, नरसिंह मेहता की पत्नी का तो नाम मुझे स्मरण नहीं है, परंतु नरसिंह मेहता अपने गृहस्थ जीवन में ही रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत कई सालों तक वो गायब हो गए थे। वो तो मतलब एक लीला, जैसे कई बार कुछ हमारे आचार्यगण भी है, रघुनाथ दास गोस्वामी है, रूप गोस्वामी भी नाम जप करते हैं, नित्य लीला में प्रवेश किए। तो उसी तरह से नरसिंह मेहता की भी जो कथा प्रचलित है कि केवल कुछ क्षणों के लिए कह सकते हैं, वह बाह्य अवस्था से आंतरिक अवस्था में चले गए थे शिव जी के साथ में, जहाँ पे उन्हें वृंदावन की रासलीला का दर्शन और रासलीला में भाग लेने मिला। फिर तुरंत वो बाहर आ गए, वो अपने गृहस्थ जीवन में रहे। उनके पुत्र और पुत्री भी थी, और वो प्रसिद्ध भी कथा है कि उन्होंने काफी प्रचार भी किया। विशुभ से राधा कृष्ण की भक्ति और राधा कृष्ण के ऊपर काफी उनके भजन गुजराती भाषा में अधिक है। और
साथ ही में फिर किस तरह से वो वैष्णव सेवा और कीर्तन, ये दो चीज उनकी प्रधान रही कि बहुत अधिक वो कीर्तन में तल्लीन रहते थे और वैष्णव की सेवा करते थे, और इतना ज्यादा कि अपने घर की भी उनको सुध नहीं रहती थी। जैसे बताया जाता है एक समय वो उनके पिताजी का श्राद्ध था, तो उन्हें कहा गया कि आप जाकर घी लेकर आइए। अब घी लेने के लिए जगह तो रास्ते में कुछ भक्त मिल गए जो कीर्तन कर रहे थे। वो कीर्तन में इतने डूब गए, इतने तल्लीन हो गए, उनको पता ही नहीं कि घर में श्राद्ध का कार्यक्रम है, और कीर्तन करते गए वो श्राद्ध का कार्यक्रम शुरू हो रहा है तो कुछ तैयारी नहीं थी। आखिर में श्री कृष्ण को इतनी चिंता हुई, बताया श्री कृष्ण ने नरसिंह मेहता का रूप लिया। श्री कृष्ण ने पूरे श्राद्ध के सामग्री खरीदा और श्री कृष्ण स्वयं ले जाकर पूरा श्राद्ध कार्यक्रम करवाए, और नरसिंह मेहता यहाँ कीर्तन में डूबे हुए हैं। तो इस तरह की कई कथा है। तो नरसिंह मेहता गृहस्थ जीवन में ही रहे, उन्होंने कुछ संन्यास नहीं लिया था। वो गुजरात में ही थे, क्या जूनागढ़, वहां पर रहकर उन्होंने प्रचार किया है भक्ति का। और तीसरा था कि वैष्णव बनने के बाद, व्हाट वाज द थर्ड क्वेश्चन? प्रश्न था कि जिस व्यक्ति को शिव जी की कृपा, शिव जी का मतलब दर्शन हो, उनका कृपा प्राप्त होने के बाद वो वैष्णव बन जाए, उसको क्या करना चाहिए? वैष्णव बन के बाद उसको भक्ति करनी चाहिए, जिस तरह से भक्ति जो प्राप्त हुई है। और क्या करेंगे, वैष्णव बनना तो भक्ति करेंगे, शिव जी की कृपा से हमें जो मिली है भक्ति। शिव जी को प्रार्थना करनी विश्व से भक्तों को। There are like two extremes. One is like those who completely, ऐसे दो जो अतिरेक होते हैं, एक होते जो शिव जी का बिल्कुल आदर नहीं करते। तो स्पष्ट रूप से जिस तरह से बतलाया जाता है, स्वयं भगवान रामचंद्र भी इस बात को कहे है, रामायण में जहाँ वर्णन आता है वहां पे, भगत खावा सो नर सपने मोहि पावा। मम भगत मतलब लॉर्ड रामचंद्र सिंह, भगवान रामचंद्र कह रहे हैं, कोई कहता है कि मैं राम जी का भक्त हूं मगर मैं शिव जी का विद्रोह करता हूँ। सो नर सपने हूं मोहि न पावा, वो कभी मुझे सपने में भी प्राप्त नहीं कर सकता। राम जी की शब्द है। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नार की मूड मति थोरी। और वहां पे कहते हैं कि कुछ शंकर जी से विमुख हो गया है, शंकर जी को अनादर कर रहा है और मेरी भक्ति करना चाहता है, विशेष रूप से उसको नरक में वास मिलता है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नरक रही कलप भरी, घोर नरक मोहबास। कि जो शंकर प्रिय मम द्रोही, दो कैटेगरी बताएगी। शंकर प्रिय मतलब शिव जी के भक्त हैं, शंकर प्रिय मम द्रोही, शंकर के भक्त है परंतु राम जी का अनादर करते हैं। और दूसरे कौन से, शिवद्रोही मम दास, जो मेरे दास कहलाते हैं, मैं राम जी का भक्त, मैं कृष्ण भक्त, परंतु शिव जी का विद्रोह करते हैं। ते नर करही कलप भरी, घोर नरक महवास। तो वहां पर कहा जाता है कि वो नरक में वास करते हैं। तो इसीलिए ये यहाँ पर जो कहा गया कि आदर हमें शिव जी को सदैव देना चाहिए, और शिव जी आशीर्वाद से फिर हमें जो गुरु मिलते हैं, हम वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित होते हैं, तो वो भक्ति के अभ्यास को हमें नियमित करना चाहिए। हरे कृष्णा। चित्त हरि प्रभु जी, ऐसी हैंड ऑफ चित्त हरि, इज ए गॉड ब्रदर हियर फ्रॉम दामोदर देश। यस प्रभु जी। चित्त हरि You are not प्रभु audible, प्रभु जी। We can't hear you. हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस वी कैन हियर यू नाउ। दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास दिया था प्रभु जी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। राधा भाव प्रभु जी आपको भी धन्यवाद। बहुत अच्छा परम वैष्णव का क्लास सुनने के लिए हमको मौका मिला है प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यू आर मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। चित्तहरि प्रभु हमारा प्रसादम का इंचार्ज है दामोदर देश में बहुत सालों से, और मेरे ख्याल से कम से कम 25 साल से तो मैं देख रहा हूँ, इतना लगातार सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। Any other question? और एक प्रश्न है रितीश प्रभु का। रितीश प्रभु को है। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हम देखते हैं कि एटलीस्ट नॉर्दर्न पार्ट में
भगवान लॉर्ड शिव की इतनी भक्ति करते हैं लोग, कांवड़ यात्रा होता है, श्रावण महीना होता है, सारे शिवलिंग के दर्शन होते हैं और बहुत ही आस्था के साथ लोग करते हैं। कांवड़ भी जाते हैं तो कोई पैदल जाते हैं, कोई दंडवत प्रणाम करते हुए जाते हैं, बहुत सारे तरीके हैं एक्चुअली में। बट प्रश्न ये उठता है प्रभु हमारे मन में कि इतनी भक्ति करते हैं भगवान शिव की, और तो उनको विष्णु तत्व या भगवान कृष्ण की भक्ति क्यों नहीं प्राप्त होती है? शिल प्रभुपाद इस बात को बतलाया। वैसे शिल प्रभुपाद से पूछा गया था बिशप से, शिव जी जो है कि शिव जी का हमने एक भाग देखा है, दैट इज कॉल्ड एज द, आई कैन से लाइक एवरी ड्यूटी हैज टू पार्ट्स, वन इज द स्पिरिचुअल पार्ट एंड सेकंड इज मैनेजरल पार्ट। तो जैसे हमारे में एक मैनेजमेंट रोल होता है, एक भक्ति वाला भी रोल होता है। तो वैसे शिव जी का वैष्णव पार्ट आज हमने सुना, बट सेकंड मैनेजर पार्ट जिसे तमोगुण की अधिष्ठाता देव ने कहा जाता है, जो इस संसार में तमोगुण का नेतृत्व करते हैं और संसार का प्रलय आदि संहार करते हैं। और विश्व से जैसे हमने अभी जो प्रार्थना चैतन्य महाप्रभु की सुनी, भूतादि नाथाय, विश्व से भूत पिशाच प्रेत ऐसे जो होते हैं, जो किसी के भी द्वारा जिनका उद्धार नहीं हो सकता, उन सब पर कृपा करने के लिए शिव जी अपना संग देने के लिए उनको इस तमोगुण के अधिष्ठाता देव बनते हैं। तो अधिकांश लोग जो शिव जी के पास जाते हैं, आई कैन से 99.99% कह सकते हैं, अधिकांश लोग जो तमोगुणी होते हैं। जैसे बाकी कथाएं तो मैंने कही नहीं, रावण, चाहे रावण है, वृकासुर है, बाणासुर है, ऐसे कई असुरों की भी कथा सुनते हैं जो शिव जी की आराधना उन्होंने की है। परंतु अधिकतर लोग, जैसे शिल प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण दिए, जब शिल प्रभुपाद को चेन्नई में प्रश्न पूछा गया था तो प्रभुपाद ने कहा कि जैसे कोई व्यक्ति यदि शराब की दुकान में जाता है, जब शराब की दुकान में जाता है, स्वाभाविक आपके मन में प्रश्न क्या आएगा? शराब की दुकान में कोई दूध पीने तो नहीं गया है ना, शराब पीने ही गया। शराब की दुकान में शराब पीने के लिए ही जाते हैं कोई। तो वैसे ही लगभग 99, कोई अगर केवल शराब की दुकान प्रवेश किया, मतलब आप समझ जाना कि वो तो शराब पीने के लिए। बहुत रेयर चांस होगा कोई व्यक्ति शराब की दुकान में जाए और केवल पानी पी के आ जाए, बहुत कम चांसेस है। तो वैसे अधिकांश लोग जो शिव जी की आराधना करते हैं तमोगुणी प्रधान जो होते हैं, जो तामसी वृत्ति वाले होते हैं, और जिनकी केवल भौतिक अभिलाषाएं होती है। जैसे हम वृकासुर की कथा सुनते हैं, जिसने वर मांगा कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं भस्म हो जाए, और आखिर में शिव जी को मारने के लिए दौड़ पड़े। या रावण थे, या बाणासुर थे, ऐसे कई जिनको भौतिक संसार में कुछ ऐसे विनाशक जिनकी वृत्तियां होती है, ऐसे कई लोग शिव जी की प्रमुख रूप से आराधना करते हैं, अधिकांश लोग। परंतु कभी कभी 1-8% जैसे मैंने कहा कि शराब की दुकान में सभी शराब वाले नहीं जाते, कभी कोई पानी वाले भी मिल जाते हैं, पानी केवल पीकर आ जाए। वैसे कुछ कुछ विरला ऐसे जीव भी होते हैं जो शिव जी की बहुत जन्मों तक भक्ति करे तो कभी उनका हृदय पवित्र हो जाता है, और जब पवित्र होने पर वो निस्वार्थ शिव जी की भक्ति करते हैं। जनरली ऐसा कभी होगा नहीं कि शिव जी की भक्ति निस्वार्थ हो, जैसे शराब की दुकान में जाने पर ऐसा कभी होगा नहीं शराब ना पिए, वैसे ही शिव जी की भक्ति में बहुत कम ऐसे होंगे। अधिकांश आपको जो देखेंगे जो बहुत अधिक पैसे वाले होते हैं, बहुत लोभी होते हैं, इस तरह के अधिकांश लोग होते हैं। परंतु उसमें कुछ गिने चुने होते हैं जो शिव जी के पास जाते हैं निस्वार्थ भावना से। ऐसे जो निस्वार्थ भावना से जाते हैं, जब कुछ नहीं मांगते हैं, तो ऐसे लोगों को विशेष रूप से शिव जी कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं, ऐसा हम सुने। तो अधिकांश लोग उस तरह के नहीं रहते इसलिए। परंतु शिव जी वही चांस देखते थे कि कब इनका ये स्वार्थ भावना चली जाएंगी, और जैसे स्वार्थ भावना चलेगी तो बहुत जल्दी मैं उन्हें अपनी भक्ति दे दूंगा। तो इसीलिए वह शिव जी कलयुग में हम पर विशेष कृपा करने के लिए श्री अद्वैत आचार्य के रूप में आए। जैसे हम चैतन्य महाप्रभु लीला में देखते हैं, अद्वैत आचार्य कौन है? सदाशिव जी है। तो अद्वैत आचार्य ने आकर और आसान कर दिया, तव कृपा बले पाई चैतन्य निताई। वही महादेव जी आए हैं अद्वैत आचार्य रूप में, तुरंत श्री चैतन्य नित्यानंद की भक्ति हमें प्रदान करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न मेरा भी है। हरे कृष्णा, पूछ सकता हूँ? हाँ प्रभु जी, एक्चुअली में हम उज्जैन के निवासी हैं, और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में से एक आता है जो वहाँ उज्जैन में है। वहाँ देखते हैं हम कि
जो वहाँ के जो पांडा है वो स्वयं भी 4 नियम का पालन नहीं करते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि जब हम उन्हें देखते हैं और जब वो महाकालेश्वर के से दर्शन करते हैं, उनके दर्शन करते हैं हम भी पांडा लोगों के, तो मन में क्या होता है कि एक क्योंकि हम इस्कॉन में आ गए हैं तो एक हमारे मन में उनको देखने के प्रति एक दोष मन में आता है। तो इस प्रकार हम कैसे उसको किस भाव से देखें, हमारी जो बुद्धि है सही उसकी दृष्टि बने जिससे हमारा उसमें नुकसान ना हो। ये प्रश्न है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी का प्रश्न जो है कि कैसा सही दृष्टिकोण हो, तो चाहे वह आप उज्जैन में जाए, कई बार कुछ लोग वो जगन्नाथपुरी में जाते हैं तो उनको तो जगन्नाथ जी के पंडा में भी दोष दिखाई देता है कि वो भी कुछ गाली देते हैं, वो भी कभी कभी कुछ पान वगैरह खाते होंगे। या फिर आप वृंदावन में जाएंगे तो वृंदावन में जहां जहां पंडा रहते हैं सभी जगह पे कुछ आपको दिखाई देता है। सबसे पहली चीज है कि आप किनको देखने गए उनको ही देखना चाहिए। आप भगवान को छोड़ के और किसी को जब देखने लग जाते हैं वो समस्या हो जाती है। दैट इज कॉल्ड एज like I was hearing one of the lecture of His Radhanath Maharaj where he mentions परम पूज्य राधानाथ महाराज जी के प्रवचन सुन रहे थे जिसमें वो कहते हैं कि judging others is the beginning of destruction of your spiritual life। कि अन्यों को जब हम कुछ दृष्टिकोण बना लेते हैं, अन्यों को जब देखना शुरू कर देते हैं, परखना शुरू कर देते हैं, हमेशा जब हम भक्ति के कुछ नियमों को सुनते हैं, भक्त ऐसा होना चाहिए, भक्ति में ऐसा होना चाहिए, ये हमारे अपने जीवन में उतारने के लिए परम पूज्य भक्ति विनोद भागवत महाराज का मैं सुन रहा था जो वैष्णव सदाचार सेमिनार, सबसे पहला पॉइंट उन्होंने ये कहा कि आप जितना कुछ सुनने वाले हैं ये आपको दूसरों को चेक करने के लिए चश्मा तैयार नहीं करना है। इससे यह जितना आप सुन रहे हैं हम अपने जीवन में उतारने के लिए। समस्या क्या होती है, हम ज्ञान बहुत ज्यादा स्वीकार कर लेते हैं और ज्ञान को केवल दूसरों को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एक चश्मा बन जाता है हमारे ज्ञान का चश्मा, जिससे हर चीज को हम देखते हैं। तो अन्यों के प्रति इसको अमानिना मान देना, वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी। तो फिर अगर वो उज्जैन में जो महाकालेश्वर है उनकी जो भी सेवा कर रहे हैं वो उनका और शिव जी का पर्सनल है कि उनको ऐसा होना चाहिए था, वैसा नहीं है, ऐसा है, जो कुछ भी है उनका, परंतु दैट इज बिटवीन देम, वी आर नो वन टू जज। हमारे अपने आध्यात्मिक जीवन की सबसे पहली सुरक्षा जो है वो क्या है कि किसी अन्य दोष दर्शन, अन्य दोष चिंतन, अन्य दोष श्रवण, अन्य दोष कीर्तन, ये 4 महाभयानक जो विष कहे जाते हैं, दोष दर्शन, दोष चिंतन, दोष श्रवण, दोष कीर्तन। तो हमको अपने आप भक्ति को में अगर प्रगति करनी है तो सबसे पहले इन 4 चीजों से अपने आप को बचाना चाहिए, चाहे वो वैष्णव हो या फिर चाहे शैव हो, चाहे फिर साधारण भी क्यों न हो। मान देना मतलब सभी जीवों को मान देना है। जब मृगारी के दृष्टांत में हम देखते हो चींटी को भी आदर दे रहे हैं, तो कोई अगर शिव जी की आराधना कर रहा है, भले उसका व्यक्तिगत जीवन में अन्य कुछ हो तो शिव जी देख रहे हैं। वैसे ही कभी भक्तों में भी हम देखते कि वैष्णव में भी या जहाँ कहीं जिस किसी तीर्थ में धाम में जाते हैं तो हर धाम के ऊपर एक भौतिक आवरण भी लगाया जाता है, क्योंकि आप धाम का डायरेक्ट अनुभव न कर पाए, आपको जब तक अधिकार नहीं, इसलिए धाम के ऊपर एक आवरण होता है। क्या आवरण होता है कि धाम आपको भौतिक दिखाई देता है और धाम में सेवा करने वालों में आपको दोष दिखाई देता है। ये 2 आवरण होते हैं कि यू सी द धाम एज मंडेन, कि वही रोड है, वहां बिल्डिंग है वृंदावन में, वही नाला है, वही सुअर है, और वहां पे जो लोग हैं उनमें दोष देखना, ये 2 चीज जो बहुत ही भयानक होती है। तो हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए इन चीजों से। हाँ, अगर वहां उज्जैन के मंदिर के अंदर में मैनेजमेंट की सेवा मिल गई और जब शिव जी ने आपको अधिकार दिया कि आप वहां पे सुधार करो कुछ, मान लीजिए आप वहां के मैनेजमेंट ट्रस्ट बॉडी के अंदर आपको एडमिशन मिल गया, तब आपके प्रश्न का अलग उत्तर होगा कि देन इंटरनली कॉन्शियसनेस इज वन थिंग एंड डीलिंग इज अनदर थिंग। भावना एक चीज होती है और व्यवहार दूसरी चीज होती है। तो भावना में आदर रहे, व्यवहार में आपको जब अधिकार देते हैं, श्री कृष्ण कुछ विशेष सेवा देते हैं, तो आपके अधिकार क्षेत्र में यदि आपको कुछ कमी दिखाई देती है तो तब आप उन्हें
कुछ सुधारने का प्रयास कर सकते हैं. Is it okay? Yeah, very good point. भगवान. Excellent. Thank you. I think we have covered most of the people who have had questions, and it is a wonderful class, Prabhuji, and really enlightening and enlivening. So we hope that you will have some time in the future also to spare for us, and we pray that all your team members in Amravati and Nagpur. I've been to Amravati, the fort and all, long time back, and to the hill stations, etc., but never to the temple. But I'm surely, if I come to India, I'll surely Please come. It will be a pleasure to meet you all of you. And I heard so much about you. You all are most welcome. आप सभी को आमंत्रण है नागपुर अमरावती में भी. अमरावती जैसे प्रभु जी ने कहा, रुक्मिणी का जन्म स्थान, वह स्थान जहाँ पे स्वयं भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करने के लिए आए थे. Where Krishna personally came to kidnap रुक्मिणी. तो आज भी वह स्थान है. अमरावती से लगकर एक स्थान है, कुंडिन्यपुर कहते हैं, कौंडिन्यपुर. Where we have a very beautiful ISKCON temple in Amravati as well as in Kaundinyapur. There's a specific place. There's a temple of Ambika where Rukmini came to worship Ambika. So you all are welcome there. और नागपुर में भी, साथ में नागपुर बहुत सुंदर स्थान है, रामटेक, the place where Lord Ramchandra came and he took the vow to kill all the demons. That's in Nagpur. So both the places under the direction of His Holiness Loknath Swami Maharaj, we are coming up with a very huge temple project. So we like to invite you. Nagpur, of course, Come I was there. to visit, and the day I visited Nagpur temple, the same evening Maharaj also had come. So I was very fortunate to have his darshan also there. It was like very nice. Nagpur, of course, wonderful. So we'll surely, all of us in Shamli will surely plan Puji, and please keep praying as you're in Vrindavan. So a special place, and we request prayers from there also. Hare Krishna. Thank you again, and big Hare Krishna mantra from all of us. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kripa Sindhu Bhaivacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo.